Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials. And here I am with the top-notch 50 MCQs for tomorrow's ISC Economics examination, which is going to give you a robust practice and a grip onto the concepts as to what kind of questions that could be asked tomorrow and आपका approach कैसा रहना चाहिए कल के MCQs के लिए. So चलिए शुरू करते हैं. First question. Marginal rate of substitution is increasing throughout, यानी कि increasing marginal rate of substitution का बात हो रहा है. ठीक है, IMRS का बात हो रहा है. What would be the shape of indifference curve? हम लोग जानते हैं कि indifference curve convex होता है because of diminishing marginal rate of substitution. Similarly, indifference curve straight line हो सकता है. Hypothetically, अगर constant marginal rate of substitution हो, that is in case of substitutes, and वहीं hypothetically ये भी होना possible है कि indifference curve concave हो because of increasing marginal rate of substitution. तो इसका आंसर होगा downward sloping concave. So अगर IMRS होगा तो hypothetically it will be concave shape just like your production possibility curve जो आपने पढ़ा था class 11 में. Production possibility curve was concave because of increasing marginal opportunity cost. Similarly, indifference curve hypothetically concave हो सकता है अगर increasing marginal rate of substitution हुआ तो. Next one. Due to leftward shift of the demand curve from D to D1. So let me make a diagram. Demand curve, supply curve. This is your initial equilibrium quantity, initial equilibrium price. Now, if there is a leftward shift in the demand curve from D to D1, that is D से D1 पे leftward shift होगा, तो क्या होगा इसका implication? Demand अभी आपका कम हो गया है. So this gap implies your excess supply, and due to excess supply, there is a surplus of goods, and surplus की वजह से जो हमारा equilibrium price है वो नीचे के तरफ आ जाएगा. ठीक है, so क्या imply करेगा? There is an excess supply in the market, so the price will fall. This should be your correct answer. ठीक है, this will be your correct answer. चलिए third one. Monopoly often leads to highest economic profit in the long run. Is it true? Yes, it is true. Yes, it is true. Why? Because of the barriers to entry. कि monopoly में जो सिंगल सेलर है उसके अलावा और कोई एंटर नहीं कर सकता है. Monopolies often produce at socially optimal level. Socially optimal level का मतलब होता है जब वेलफेयर मोटिव के साथ प्रोडक्शन हो रहा है. वेलफेयर यानी कि एकदम ऐसे प्राइस पे बेच रहा है which is the most affordable for everyone and monopoly is not making any sort of profit. So इसका आंसर क्या होगा? That is wrong because monopoly is a market जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इंडल्ज करता है in order to earn maximum profit. So this is true, assertion is true, but reason is false. So इसका आंसर होगा assertion is true, but the reason is false. ठीक है. Next, the government of India imposes wealth tax. Wealth tax मतलब कि income tax हो गया, direct tax हो गया, income या फिर direct tax on the wealthier section of the society and provide subsidies to the economically weaker section. Wealthier section यानी rich के ऊपर ज्यादा direct tax लगाता है and poor के ऊपर कम लगाता है, यानी उनको subsidies देता है. ठीक है, tax के basis पे, which is true. So assertion is true. Reason, this helps to reduce the gap, means income inequality. ठीक है, it helps to reduce gap, that is income inequality between the haves and the haves not, which is between the rich and the poor. So इसका आंसर क्या होना चाहिए? Reason is also true and reason is justifying the assertion, क्योंकि गवर्नमेंट इंडीड ऐसा करता है कि रिच के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाता है, पुअर के ऊपर कम लगाता है, ताकि रिच और पुअर के बीच का गैप कम हो सके. So इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए. बोथ assertion reason is true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है. Next one, which of the following is not a characteristic of price
टेकर फर्म, दैट इज प्राइस टेकर कौन है आपका? परफेक्ट कंपटीशन। हम लोग जानते हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर। तो प्राइस टेकर फर्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्या परफेक्ट कंपटीशन का टीआरपी इनटू क्यू होता है? हाँ होता है, दिस इज करेक्ट। क्या उसका एवरेज रेवेन्यू और प्राइस होता है? हाँ होता है, इक्वल टू, करेक्ट। क्या उसका मार्जिनल रेवेन्यू और टीआर इक्वल होता है? नहीं, अंडर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू सेम नहीं होता है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमआर और प्राइस भी सेम होता है परफेक्ट कंपटीशन में, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज दी not a characteristic. Next, which phase of law of variable proportion has been ruled out on the grounds of technical inefficiency? जहां टेक्नोलॉजी लगाने के बावजूद भी आपको और रिटर्न्स नहीं आएंगे। सो दिस इज एसोसिएटेड विथ नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विथ नेगेटिव रिटर्न। तो क्या ऑप्शन में दिया है? इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेगेटिव रिटर्न के साथ एसोसिएटेड है। Next one. Ritik manufactures bike in India. He then started manufacturing high segment bikes, but he faced extreme cutthroat competition in the industry, and therefore he decided to form a cartel. Cartel का मतलब होता है groupism, and groupism is associated with oligopoly. ठीक है, कार्टेल कीवर्ड देखते ही आपका ग्रुपिज्म, आपको ओलिगोपोली स्ट्राइक होना चाहिए विद अदर मैन्युफैक्चरर्स टू एलिमिनेट द कंपटीशन टू अर्न हायर प्रॉफिट, सेटिंग हाई प्राइसेस, आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस्ड, मैंने आपको कर दिया, बता दिया, इट विल बी ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी नेम्ड ग्रीन प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. Celebrities are promoting the firm's product. This leads to high selling and advertisement cost. Now, selling and advertisement cost, brand loyalty, close substitute, large number of close substitute, ये सारे किसके characteristic है? It is all associated with monopolistic. Monopolistic में promotion बहुत ज्यादा high होता है, right? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं, अलॉन्ग विद दैट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन की तरह। सो इसीलिए पूछा है कि किस टाइप का डिमांड कर्व रहेगा। हम लोग जानते हैं कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर, एंड ऑल्सो वी नो कि प्राइस और एआर सेम होता है, पर यूनिट रेवेन्यू अर्न्ड और प्राइस सेम होता है। तो अगर प्राइसेस रिड्यूस होगा तो इन अदर वर्ड्स एआर भी रिड्यूस होगा, एंड वी आल्सो नो दैट एआर इज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। ठीक है, एआर इज द डिमांड कर्व। सो इसीलिए कैसा होगा आंसर इसका? डाउनवर्ड स्लोपिंग इज योर आंसर, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, अपवर्ड नहीं। ठीक है, द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यानी कि सेकेंड फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, राइट? डिक्रीजिंग रिटर्न, वो क्या था आपका? डिस्टर्बिंग, याद करिए आपने पढ़ा होगा फ्रैंक में, डिस्टर्बिंग ऑप्टिमम प्रपोर्शन, ये था पॉइंट नंबर 1, एंड दूसरा था इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी ऑफ एफओपी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी है, दैट डिमिनिशिंग रिटर्न फेज में हमारे पास फिक्स फैक्टर्स बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो इसका आंसर होगा ए बी, यानी कि करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स नेगेटिव, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स नेगेटिव, आई होप आपको ग्राफ आता है इसका, कि मार्जिनल, पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल इज राइजिंग, देन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, marginal falls, total reaches its maximum, marginal becomes equal to 0, and then when total starts to fall, marginal turns negative. So when marginal product turns negative, ये वाला जोन में total product starts to fall. This should be your correct answer. ठीक है, next, which of the following equation is correct?
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? आइए देख लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 होता है, टीपीएन माइनस 1, so this is incorrect. Average product is equal to TP into L, that is also incorrect because average product is total product divided by labor, not multiplied. Total product is equal to average product into labor होता है, ना कि divided by labor, so this is also incorrect. And marginal product का एक और formula है that it is the change in total product by change in labor, so this is your correct option. ठीक है। In which market MR can become zero or negative? MR zero और negative हो सकता है imperfect competition में, imperfect competition में, और imperfect competition में दोनों आते हैं, मोनोपोली भी और मोनोपोलिस्टिक भी, क्योंकि दोनों को एक के केसेस में बोथ हैव टू रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर, सो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव भी जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी इनिशियली पॉजिटिव, बिकम्स इक्वल टू 0 एंड देन इवेंचुअली टर्न्स नेगेटिव, सो इट शुड बी बोथ ए एंड बी, बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। विच कॉस्ट इज इनकर्ड व्हेन द कंपनी इज क्लोज्ड? क्लोज यानी कि शटडाउन के साथ एसोसिएटेड है। शटडाउन का कंडीशन क्या होता है? व्हेन द प्राइस इक्वल एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फर्म सिर्फ अपना लेबर का कॉस्ट कवर अप कर पा रहा है, नो फिक्स्ड कॉस्ट। फर्म अपना फिक्स्ड कॉस्ट नहीं कवर अप कर पा रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज शटडाउन कॉस्ट, ठीक है, अनदर नेम। नेक्स्ट वन, a firm can quit the industry in the short run as well. Is the first statement true? No, it is false. A firm cannot quit in the short run because firm has to incur its fixed factors. फर्म को अपने फिक्स फैक्टर्स इनकर करने ही पड़ेंगे, तो वो लोग शॉर्ट रन में नहीं, वो लोग लॉन्ग रन में क्विट कर सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, अ फर्म मस्ट कवर ऑल द प्रोडक्शन कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, विच इज ट्रू, कि फर्म को एटलीस्ट नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाना ही है। फर्म का AR शुड बी इक्वल टू AC या TR शुड बी इक्वल टू AC। फर्म को लॉन्ग रन में अगर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि अगर फर्म ब्रेक इवन भी नहीं कर पाएगा तो इट शुड नॉट सस्टेन, सो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो इसका होगा दैट ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली एसोसिएटेड है कार्टेल के साथ, सो डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 होना चाहिए। सो ओलिगोपॉली इज एसोसिएटेड विद कार्टेल। मोनोपोलिस्टिक इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि वहां सेलिंग कॉस्ट होते हैं। राइवल फर्म्स एक दूसरे के प्रोडक्ट को ब्रांड के थ्रू डिफरेंशिएट करने का कोशिश करता है। डुओपोली इज एसोसिएटेड विद टू सेलर्स एंड परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस मेकर। सो देख लीजिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इट शुड बी 1 का D, 2 का A, 3 का B एंड 4 का C। 1 का D, 2 का A, 3 का B एंड 4 का C। ऑप्शन C शुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, फर्म्स एंड अप अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट ड्यूरिंग लॉन्ग रन इफ, ये कौन से फीचर का सिग्निफिकेंस है, कौन से फीचर का इंप्लीकेशन है? इफ देर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। If there is no restrictions on the entry of the new firm, then they can earn normal profit only in the long run. So if there are no barriers on the entry of new firm, if there is a freedom of entry and exit, ठीक है। If an oligopoly market does not have product differentiation, now आपको पता होगा that oligopoly भी दो टाइप का हो सकता है। एक तो होता है प्योर oligopoly, जहां पे कैसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, होमोजीनियस। वहीं एक होता है डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली। देयर इज अ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली जहां पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली। प्योर ओलिगोपॉली कुड बी योर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है। So if an oligopoly market does not have a product differentiation, then it is called a pure oligopoly because it does not have the differentiation, ठीक है। Next one, the average revenue curve under monopoly market is,
हम लोग क्या जानते हैं दैट मोनोपोली मार्केट में सिंस देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल बोल के अगर प्राइस P0 Q0 अगर प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज भी कर दिया जाए तो भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा. सो इन अदर वर्ड्स जो AR कर्व है यानी कि जो प्राइस कर्व है वो कैसा है, इट इज रिलेटिवली inelastic. In other words, elasticity is less than 1. So इसका आंसर होगा none of the above. ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इनलास्टिक नहीं है, रिलेटिवली इलास्टिक भी नहीं, दैट इज मोनोपोलिस्टिक का मार्केट. ठीक है, मोनोपोली में आपका रिलेटिवली इनलास्टिक होगा. इट इज बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट, द फर्म क्लोजेस डाउन. नाउ सी देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, शट डाउन तब होता है, शट डाउन हैपेंस व्हेन फर्म इज जस्ट कवरिंग अप इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवीसी, एसी, मार्जिनल कॉस्ट, एंड अगर प्राइस इज जस्ट tangent, price is just tangent E0 over here, price is just equal to average variable cost, then it leads to shutdown. लेकिन बोला है क्लोज डाउन कब होता है, फर्म कब पूरी क्विट कर देगा इंडस्ट्री को, इफ द प्राइस ड्रॉप्स बिलो P0 से P1, if the price drops below average variable cost, in that case the firm will close down. So if price goes below AVC, AR or price, if it goes below AVC, then it will close down. So ये क्या हो जाएगा, AR is less than AVC. This is your correct option. ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इंप्लाइज नॉर्मल प्रॉफिट ब्रेक इवन होता है, और ब्रेक इवन में क्या होता है आपका, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू आइदर एवरेज कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. ठीक है, सो इट इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन बिकॉज फर्म अपना दोनों फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कवर अप कर ले रहा है, इसीलिए. नेक्स्ट, while the seller under perfect competition has to equate price, perfect competition में हम लोग जानते हैं that price is equal to AR is equal to MR. so perfect competition में फर्म को अपना मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वलाइज करना है इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, प्राइस इक्वल AR इक्वल MR, राइट. दिस इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो वही बोला है अ मोनोपोलिस्ट यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज द सेम लॉजिक दैट दिस इज योर, वन सेकेंड, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू फॉर अ मोनोपोलिस्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट. तो उसको अपना मार्जिनल कॉस्ट को अगेन यहां इक्वेट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए. ठीक है, so it is MR and MC is your correct option. It is the same condition for both perfect competition and imperfect competition. I hope that is clear. Next, change in total cost. अगर total cost change हो रहा है, that results from a particular decision made, it is known as, since वो change हो रहा है, it is increment cost. Increment यानी कि जो कि increase कर रहा है, increasing in nature, that is increment cost. ठीक है, increasing in nature. book cost, implicit cost, none of the above नहीं होगा. ठीक है, चलिए, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम लोग क्या जानते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में it is imperfect competition and monopolistic competition में this is how your MR looks and AR का fall is greater than MR, right? So this is your MR and this is your AR. So AR is greater than MR. So क्या हो, and also we know that AR और price same होता है. So this should be your correct option. Price is greater than MR. ठीक है. Identify the correct formula. Now there's a mistake. Actually, you had to identify the incorrect formula. ठीक है. And this will be your marginal utility. Sorry, this will be your marginal revenue. ठीक है. Summation of marginal revenue is equal to TR. So this is correct.
AR is equal to TR into Q. No, this is incorrect. Right? TR is equal to price into Q is correct and MR is equal to TR and TRN minus 1 is correct. So incorrect हो जाएगा AR is equal to TR into Q, क्योंकि AR होता है total revenue by quantity, not multiplied. ठीक है? चलिए, in fixed cost dash cost is independent. In fixed cost dash cost is independent. The answer should be your marginal cost, but मैं आपको reason बता दे रहा हूं क्यों. हम लोग क्या जानते हैं, मार्जिनल कॉस्ट किससे निकलता है? इट कुड बी कैलकुलेटेड एज TCN minus 1 or it can also be marginal cost is equal to TVCN minus TVCN minus 1. ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ओरिजिन से, और यहां कहीं से शुरू हो रहा है आपका टोटल कॉस्ट. दोनों के बीच का डिस्टेंस पैरेलल था बिकॉज ऑफ कांस्टेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट का बिहेवियर, टोटल कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज टोटल वेरिएबल कॉस्ट के रेट ऑफ चेंज के जैसा है, क्योंकि दोनों के बीच में एक कांस्टेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है. इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट जो कि चेंज होता है, वो चेंज आप टोटल कॉस्ट से भी निकाल लो तो चलेगा, या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल लो तो चलेगा, क्योंकि दोनों का बिहेवियर दे बोथ इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन एट एन इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सो दोनों से आपका आ सकता है, लेकिन बट प्लीज रिमेंबर दिस. पता नहीं क्यों टीचर्स नहीं बता रहे, बट ध्यान रखिएगा कि जब आप मार्जिनल कॉस्ट को सम अप करेंगे तो उसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है, टोटल कॉस्ट नहीं आता है. मार्जिनल कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ चेंज. एंड जब मैं टोटल कॉस्ट का बात करता हूं, टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों हैं, जहां पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट शॉर्ट रन में, जो कि चेंज नहीं हो रहा है, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द चेंज, इट इज चेंजिंग, राइट, इट इज वेरिंग. सो मार्जिनल को अगर सम अप करें तो मार्जिनल को सम अप करने से सिर्फ चेंज आना चाहिए, यानी कि कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? टोटल वेरिएबल का एलिमेंट आना चाहिए, ना कि टोटल कॉस्ट. सो जब टीवीसी आएगा इसमें आपको टीएफसी अलग से जोड़ना पड़ेगा ताकि आप टीसी निकाल सको. प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, कल अगर सम आया तो गड़बड़ मत कर दीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक. होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट्स है, परफेक्ट आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, हाई बैरियर्स टू एंट्री, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. This is not a characteristic because perfect competition में there is a freedom of entry and exit. All three are your correct option. ठीक है? Next one. A firm's supply curve in the short run is its, ये chapter 11 से associated है. Average variable cost, average cost. There's a mistake, sorry, let me make it again. Average variable cost, average cost, marginal cost. आप जानते होंगे कि this is your point of shutdown, क्योंकि प्राइस यहां पे वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर अप कर पा रहा है, लेकिन फिर भी फर्म प्रोडक्शन कर सकता है इस पॉइंट पे, अगर वो किसी भी तरह एनालिसिस करे कि आगे जाके इट विल बी एबल टू कवर अप इट्स वेरिएबल कॉस्ट. सो इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है, अपर पैनल है, कैन यू सी दिस थिंग, दैट इज व्हाट योर सप्लाई कर्व इज. ठीक है, सो इट शुड बी मार्जिनल कॉस्ट अबव, टोटल नहीं होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा. दिस शुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. मार्जिनल रेवेन्यू तो होगा नहीं, एवरेज होगा नहीं, डिमांड कर्व होगा नहीं. ठीक है, विच इज अबव वेरिएबल कॉस्ट. चलिए, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, ED is equal to percentage change in quantity demanded by percentage change in price. So if price elasticity of demand is 2 and price increases by 10%, what is the percentage change in quantity? आप multiply कर दो, आपका आ जाएगा 20% is your answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Which cost curve is U-shaped due to law of variable proportion? याद करिए, ये था आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो कि असिम्प्टोटिक होता है.
ये है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये है आपका एवरेज कॉस्ट, एंड साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होता है। सो कौन कौन सा आंसर बनेगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा नहीं, एवरेज टोटल कॉस्ट हाँ है यू शेप, मार्जिनल कॉस्ट भी हाँ है, सो बोथ बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल थ्री आर यू शेप एक्सेप्ट फॉर दिस वन, दिस इज हाइपरबोला। नेक्स्ट वन, a tax on the good will lead to greater dead weight loss, means बहुत ज्यादा वेस्टेज होंगे रिसोर्सेस के या प्रोडक्ट के, कि प्रोडक्शन बन गए लेकिन बिक नहीं पा रहे हैं। when demand is inelastic and supply is elastic, no it is incorrect। डिमांड इज inelastic का मतलब हो गया कि irrespective of price, फिर आप चाहे टैक्स बढ़ा दो कि ना बढ़ाओ फिर भी कंज्यूमर खरीदेगा, दैट इज इनकरेक्ट। डिमांड इज इलास्टिक एंड सप्लाई इज inelastic, डिमांड इज इलास्टिक का मतलब हो गया कि कंज्यूमर्स एक ही प्राइस पे खरीदने को तैयार है, और इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब हो गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसर्स लिमिटेड क्वांटिटी ही देंगे, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, बट रादर दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। कि डेड लॉस का मतलब होगा, डेड वेट लॉस का मीनिंग होगा कि जब दोनों डिमांड सप्लाई इलास्टिक है, यानी दोनों कंज्यूमर्स साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स दोनों ही प्राइस सेंसिटिव है, कि थोड़ा भी अगर टैक्स बढ़ाया गया, अ टैक्स ऑन गुड इफ इट इज इंक्रीज्ड, ना ही कंज्यूमर खरीदेगा ना ही प्रोड्यूसर बेचेगा हायर प्राइस पे, हायर टैक्स पे। ठीक है, सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द अप्रोचेस? ऑल थ्री, ऑल ऑफ दीज। चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो तो भी आपको जीडीपी एमपी मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप इनकम मेथड से निकालेंगे तो आपको एनडीपी एफसी मिल जाएगा, फिर तो उसे कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं जीडीपी एमपी में। एंड वैल्यू एडेड मेथड से भी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या जिसको जीडीपी एमपी ही बोलते हैं हम लोग, आ जाएगा। सो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, किसी से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, नहीं, प्राइसेस गिर रहे हैं, नो, इनकरेक्ट। एन इंक्रीज in the general price level, yes, and a fall in the value of money, yes, fall in the value of money का मतलब हो गया रियल इनकम, यानी कि आपका परचेजिंग पावर। सो इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा, महंगाई आएगा, तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग इनकम है, आप उससे लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद पाओगे, क्योंकि आपका परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा। So the correct option should be both B and C. ठीक है, next one, the central bank can control the money supply through, हम लोग जानते हैं कि दोनों क्वांटिटेटिव मेजर्स के थ्रू भी कर सकता है एंड साथ ही साथ क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू भी कर सकता है। ठीक है, मनी सप्लाई। सो क्या क्या होगा क्वांटिटेटिव मेथड में? ओपन मार्केट ऑपरेशन, जी हाँ आता है। अगेन दिस इज क्वांटिटेटिव मेथड है आपका। चेंजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रेशियो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। डिस्काउंट रेट, यानी कि आपका द रेट एट विच, बैंक रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक, ये भी होता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट से है, आप कंपोनेंट याद करिए। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द फर्म, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, एंड नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो वो चार कंपोनेंट हो गए। उसको छोड़ के ये तो है कंपोनेंट, ये भी है, ये भी है, ये दोनों भी है। मनी सप्लाई इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। में थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। नाउ कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? व्हेन प्राइसेस आर रिड्यूस, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है कि जब डिमांड डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, इंक्रीज इन प्राइस assuming other factors remaining constant। ठीक है, तो जब भी इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, ऐसे सिनेरियो में आप ग्राफ बना लिया करो दैट अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, उसके वजह से अगर डिमांड डिक्रीज हो रहा है,
सो दिस मूवमेंट, लेट्स टेक ए से बी, जो ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ये आपका कॉन्ट्रैक्शन इंप्लाई करेगा। तो यहां से कहां पे अपवर्ड मूवमेंट जा रहा है? एल टू एम। सो मूवमेंट फ्रॉम एल टू एम इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, a firm under dash market can earn normal profit only in long run। कब firm normal profit खाली कमा सकता है long run में? if there is a freedom of entry and exit, right? and कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है? एक तो है आपका परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स अलाउड है, एंड दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक। सो बोथ ए एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। विच टाइप ऑफ टैक्स डिस्करेजेस पीपल which type of tax discourages people from making more money, as it can lead to class warfare, means a differentiation and a conflict between rich and poor, and individuals hiding their income or assets। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन सा टैक्स होता है जहां पे झगड़ा होता है रिच और पुअर के बीच में? दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स के केसेस में जब टैक्स रेट बढ़ाया जाता है, रिच पीपल अपना इनकम को हाइड करने का कोशिश करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अ स्मॉल परसेंटेज इज चार्ज ऑन द इंडिविजुअल इनकम, रिग्रेसिव नो, अ फिक्स्ड परसेंटेज यानी प्रोपोर्शनल नो, टैक्स चार्ज एट अ डिक्रीजिंग रेट नो, टैक्स चार्ज एट अ डिक्रीजिंग रेट इज अगेन आपका रिग्रेसिव टैक्स, दिस शुड बी ऑप्शन। टैक्स चार्ज एट एन इंक्रीजिंग रेट, प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, next question, if 10% increase in price leads to 20% fall in demand, what will be the degree of elasticity? We know that elasticity is percentage change in quantity demanded by percentage change in price. So 10% increase in price leads to 20% change in demand, right? Percentage change in 20 quantity is 20 and price is 10, so elasticity is coming to 2, so it should be greater than 1, therefore relatively elastic। so elastic demand is your correct answer। ठीक है, next one, induced investment refers to, क्या होता है induced investment? it is an investment which is undertaken for a profit motive, that is the more we earn is the more we invest, right? So induced investment expenditure refers to total investment expenditure which changes with the change in national income। yes, this should be your correct answer। फिर भी बाकी सारा भी पढ़ लेते हैं। the expenditure made by the firm that remains constant, नहीं, autonomous remains constant। the investment made in the economy that remains constant, no, investment made by the firm, no, it is the investment which changes with the change in income। ठीक है, which of the following best illustrates leakage? now leakage के component क्या क्या है for a 4 sector model? it is savings, फिर it is imports, and it is taxes, right? S plus T plus M, this is your leakage। तो इसीलिए क्या क्या होगा? which of the following best illustrate? investment is injection, so no, export is injection, no, government expenditure is injection, no, saving is your answer by the household। next, in which of the following cases the price effect is positive? now positive price effect क्या होता है कि that with the rise in price demand also increases, with the fall in price demand also decreases। this is an exception to the law of demand। ठीक है, it is an exception to the law of demand। सो कौन कौन सा एक्सेप्शन है? क्या इंफीरियर गुड में प्राइस के साथ एसोसिएशन होता है? नहीं, इनकम के साथ होता है। नॉर्मल गुड में भी इनकम के साथ होता है। सब्स्टिट्यूट में क्रॉस यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के साथ होता है। सो गिफन गुड शुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गिफन गुड हैज अ एक्सेप्शन टू अ लॉ ऑफ डिमांड। while reading the newspaper, Madhav finds a headline
import duty on the refined oil and crude oil is up by 5%. पेट्रोलियम के ऊपर आपका ड्यूटीज टैक्सेस जो है आपका 5% से इंक्रीज हो गया है. एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक मार्केट बाय आइडेंटिफाइंग द मूवमेंट और शिफ्ट इन सप्लाई. हम लोग क्या जानते हैं दैट टैक्स इज अ नॉन प्राइस फैक्टर. टैक्स बढ़ाना इज अ नॉन प्राइस फैक्टर. सो इफ द टैक्सेस आर इंक्रीज्ड, if the taxes are increased, in that case your supply will decrease, so there will be a leftward shift in the supply curve, so it will be a decrease in supply. ठीक है. Next, the situation in which consumers are willing to pay more than the ceiling price. क्या था ceiling price? This is your demand, this is your supply, this is your point of equilibrium, this is equilibrium quantity and this is equilibrium price P0. ठीक है. सीलिंग आपका नीचे इंपोज किया जाता है, यहां पे मैक्सिमम प्राइस लगाया जाता है. इससे क्या होगा आपका एक्सेस डिमांड एंड शॉर्टेज. शॉर्टेज होगा तो क्या इफेक्ट आएगा. बोल रहा है एक ऐसा सिचुएशन बताइए जहां पे कंज्यूमर शॉर्टेज होने की वजह से ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार होगा. सो दिस इज कॉल्ड अ ब्लैक मार्केटिंग. ठीक है. where consumers are prepared to pay more than the existing price, legal price, that is black marketing. Next, in the market mechanism, that is chapter 6, excess demand will result in competition among. Excess demand क्या होता है? If your demand is greater than supply, so it leads to shortage. So basically कौन लड़ाई करेंगे shortage में? Buyers. ठीक है, buyers लड़ेंगे प्रोडक्ट के लिए. चलिए नेक्स्ट. इन विच इंस्टेंस कैन वी नोटिस एस्केलेशन. एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस अकम्पनीड बाय अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. नाउ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप गेस वर्क करने का कोशिश मत कीजिएगा. रादर मेरा एडवाइस रहेगा कि आप हर एक पॉइंट के हिसाब से डायग्राम बना लो ताकि आपको आसानी होगा. ठीक है. तो पहला, इफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज बट डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर दैन डिक्रीज इन सप्लाई, तो आप बना लो पहले. ठीक है. एक रफ ग्राफ बना लेंगे ना तो आपके लिए भी आसानी होगा. दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, दिस इज योर इनिशियल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस. बोल रहा है बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज बट डिक्रीज इन डिमांड इज मोर दैन डिक्रीज इन सप्लाई. सो मान लीजिए आपका डिमांड डिक्रीज हो रहा है बाय ग्रेटर प्रपोर्शन D1 एंड सप्लाई भी डिक्रीज हो रहा है बट बाय अ लेसर प्रपोर्शन. ठीक है. S1 इन दैट केस आपका नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा? यहां पे E1. ठीक है. जहां आप देख रहे हैं कि प्राइस भी रिड्यूस हो रहा है एंड साथ ही साथ क्वांटिटी भी रिड्यूस हो रहा है. क्या क्वेश्चन में ये पूछा है? एस्केलेशन इन द प्राइस बोला है, इंक्रीज इन प्राइस हो रहा है, तो यहां तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. मूविंग टू द सेकंड ऑप्शन. If supply decreases while demand increases and decrease in supply is more than the increase in demand, again you make the graph to identify the correct option. Initial demand, initial supply, initial equilibrium quantity and initial equilibrium price. क्या बोल रहा है? If supply decreases while demand increases but decrease in supply is more than increase in demand, तो supply decreases S1 and demand increases but by a lesser proportion, right? D1. तो यहां आएगा नया इक्विलिब्रियम. यहां आप देख रहे हैं कि प्राइस भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ क्वांटिटी भी घट रहा है. सो B इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. B इज योर करेक्ट ऑप्शन. सो ऐसे केसेस में हमेशा ग्राफ बना के आप फिर अपना आंसर को मार्क करिएगा, नहीं तो चांसेस रहता है आप रॉन्ग कर सकते हो. नेक्स्ट, if the price of good decline while the quantity of the product exchange in the market decreases, then most likely there has been. So क्या बोल रहा है? If the price of the good has decreased and the quantity has also decreased, again आप demand supply बनाओ, इनिशियल इक्विलिब्रियम मार्क करो, P0 Q0,
अब आप एक एक फैक्टर को पकड़ पकड़ के बनाते जाओ कि क्या होगा। एस्केलेशन इन डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो देयर इज एन एक्सेस डिमांड एंड अ शॉर्टेज ऑफ गुड, इन दैट केस आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट, कैंसल्ड आउट। दूसरा ग्राफ बनाओ, इनिशियल डिमांड, इनिशियल सप्लाई एंड इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस, इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बोल रहा है अ डिक्रीज इन डिमांड। सो अगर डिमांड डिक्रीज होगा, अगर डिमांड डिक्रीज होगा तो उससे आपका एक्सेस सप्लाई जनरेट होगा E1, तो यहां पे सरप्लस की वजह से प्राइस भी गिरेगा, क्वांटिटी भी गिरेगा। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। और डिमिनिश इन डिमांड, प्राइस भी डिक्रीज होगा एंड क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। सप्लाई अगर आप एस्केलेट करोगे, थर्ड वाला अगर आप देखोगे तो सप्लाई एस्केलेशन की वजह से क्वांटिटी तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन प्राइस डिक्रीज होगा, इसीलिए थर्ड वाला नहीं होगा। एंड डिक्रीज इन सप्लाई अगर आप करोगे, चौथा वाला, अगर आप सप्लाई डिक्रीज करोगे, चौथा वाला, इन दैट केस आप देखोगे कि एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं, क्योंकि हमें चाहिए कि प्राइस भी डिक्रीज हुआ है एंड क्वांटिटी भी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आप ग्राफ बनाइए, दिस इज फॉर ऑप्शन ए, दिस वाज फॉर ऑप्शन बी, दिस वाज फॉर सी। आप अलग अलग ग्राफ बना के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। ए लिमिटेड कंपनी इज होर्डिंग कॉफी, होर्डिंग यानी स्टोर करके रख रहा है अपने पास, सप्लाई रिलीज नहीं कर रहा है, एंड ही एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस ऑफ कॉफी विल इंक्रीज फर्दर, सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइट नाउ and the prices have increased due to this. What has happened to the market? It has caused a disequilibrium in the market. ठीक है, सिंस उसने होर्डिंग कर लिया है, उसने सप्लाई को अपने पास रख लिया है, प्रिजर्व कर लिया है, वो छोड़ नहीं रहा है, सो दैट लीड्स टू अ डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम करप्ट हो जा रहा है, ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, डिसरप्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट वन, इफ द इनकम इफेक्ट इज ओवरपावरिंग, आउटवेइंग, इनकम इफेक्ट अगर ग्रेटर दैन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, मुझे पता नहीं अब आपके टीचर्स ने पढ़ाया है कि नहीं ये आपको, बट मैं बता दूं कि अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, जो कि होता है गिफन गुड के केस में मेनली, सो इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, बट वहीं अगर इनकम इफेक्ट वीक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो इन दैट केस जो कि नॉन गिफन इंफीरियर कैटेगरीज होते हैं, जो इंफीरियर गुड होते हैं, उनके लिए अप्लाई होता है, तो दैट होल्ड्स लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इट होल्ड्स लॉ ऑफ डिमांड, सो इन दैट केस लॉ ऑफ डिमांड इज वायोलेटेड, इज योर करेक्ट ऑप्शन। Income effect is greater than substitution effect. Next, Aryan consumes two goods, pen and chocolate. Price of pen is 10 and price of chocolate is 15. Marginal utility derived from, यहां both होना चाहिए, both the commodities is 8. Does Aryan strike equilibrium? हम लोग जानते हैं कि two commodity cases में equilibrium का condition is mu of x by price of x should be equal to mu of y by price of y should be equal to marginal utility of money. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। marginal utility of x is 8 by price of pen is 10 and marginal utility of chocolate is 8 and the price is 15. तो ये तो आ जाएगा आपका 0.8 and दूसरा वाला आपका आ जाएगा 8 divided by 15 which is 0.53. So it is not equal to this. So your answer should be no. Aryan does not strike equilibrium. ठीक है, insufficient data मत करके आ जाइएगा, निकाल लीजिएगा। And the last one, last MCQ for today. During summer vacations, the demand for ice creams increases despite the price remaining unchanged. Demand for ice cream बढ़ रहा है summer vacation में, लेकिन प्राइस फिर भी चेंज नहीं हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द फेवरेबल सीजन, सो इन दैट केस दिस इंप्लाइज अ राइटवर्ड शिफ्ट, सो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे ना, आपका प्रेपरेशन कैसा होना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपका कितना राइट हुआ। प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए,
वीडियो को शेयर करिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं सारे चैप्टर्स के साथ नहीं आ पाया, क्योंकि at this point of time towards the end of your examination, if I try to take up each and everything, मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग है। यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू टीच। आई टीच इकोनॉमिक्स वेरी मैथमेटिकली एंड नॉट very theoretically, because it is to be imbibed with mathematics and you need to understand that. So इसीलिए अभी के लिए सिर्फ MCQ, जब मैं नेक्स्ट सेशन में आऊंगा मैं फुल फ्लेजेड सब पढ़ाऊंगा एंड प्रॉपरली पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम पे आप अपने जूनियर्स को मेरा वीडियोस या मेरा चैनल रेफर कर सकते हो। And if you are liking my content, then please do like, share, subscribe, and share it with your friends. And in my next video, I'm going to come up with how you have to write a perfect 6-mark answer and a 4-mark answer and a 3-mark answer. Okay. So have a great time preparing for your examination. Take care. Bye-bye.